Hello viewers, welcome back to English Only Zone. Yesterday we studied a chapter from our class 8th English book, Purvi. The name of the chapter was Wisdom Paves the Way. So we had completed only the first part of the chapter yesterday. This video is related to the second part of the chapter. So let's have a quick recap about what we have studied in this. So the characters in this story are first the king of Ujjain, then four young men, the merchant, two sentries, and in this story, there were four young men who were going towards Ujjain in search of some work. They wanted to showcase their talent in front of the king of Ujjain, who was a very diligent king, who was a very good king, and they wanted to get some work in the court of that king. So they wanted to devise a plan related to that. But one of them said that let's reach at least to the gate of the city, Ujjain, and then at that time, seeing the circumstances or the surroundings, we can devise the plan there only. But as soon as they were discussing all these things, they saw some tracks on the footpath, on the road, actually, not on the footpath. So all four of them wondered that there was something peculiar. Peculiar means there was something strange about those tracks which were made on the road. And what were those peculiar things? That first, the tracks were made by camel, means a camel had walked there on that road before them, and the camel was lame, and it was blind in his right eye, and it has some stomach issues also. He had some problem in his stomach as well. As soon as they were discussing, they were looking at these peculiar things, they were finding out some peculiar things. They saw a merchant running, and it seemed as if the merchant had lost some important thing, or a thing which had a lot of value. So they asked the merchant what he was searching. तो मर्चेंट ने उनसे कहा कि मेरा कैमल खो गया है. तो उन सब ने उस कैमल की जो क्वालिटीज़ सर्च करी थी, अपने आप सोची थी उन ट्रैक्स को देखकर, उसके फुटप्रिंट्स को देखकर. तो उन्होंने वो सारी क्वालिटीज़ कैमल की बताई कि क्या तुम्हारे कैमल में ये सब क्वालिटीज़ थी. तो मर्चेंट ने कहा कि येस, ऑल दीज क्वालिटीज़ वर देयर इन माई कैमल, और नाउ टेल मी वेयर माई कैमल इज़. तो अब इन्होंने कहा कि वी हैव नॉट सीन योर कैमल, हम बस उसके फुटप्रिंट्स को देखकर इस बात को समझ पा रहे थे, या फिर जो रोड थी, जो पूरा पैसेज था, उसको देखकर हम इस बात को समझ पा रहे थे कि इसमें ये सब क्वालिटीज़ हैं आपके कैमल में. तो बट वी हैव नॉट सीन इट. अब मर्चेंट को लगा हाउ इज़ इट पॉसिबल कि किसी ने मेरे कैमल को इतने अच्छे से स्टडी कर लिया बिना उसको देखे कि वो लेम है, एंड उसके मतलब वन आई में, in right eye he is blind, and he had some problem in his stomach also, and it had a short tail also. तो उसने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, या तो आपने उसको चुरा लिया है, आपने उसको स्टील कर लिया है और आपने उसको बेच दिया है, यू हैव सोल्ड इट टू समवन. तो सबने कहा नो, दैट्स नॉट द थिंग, वी हैव नॉट इवन सीन इट. तो उसने कहा कि नो, आई वॉन्ट टू टेक यू इन द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ उज्जैन, एंड ही विल ओनली फाइंड आउट द रियल थिंग, वॉट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स. तो यहाँ तक हमने कल करा था. अब सीन 2 से हम स्टार्ट करेंगे द किंग्स कोर्ट से. द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन सराउंडेड बाय courtiers. The ground hall is adorned with rich draperies, tall columns, and a golden canopy. The king, regal in his bearing, watches intently as the merchant and the sentry bow before him. So the king of Ujjain, he was sitting on his throne. He was surrounded by courtiers. There were many courtiers in his court, and there was a grand hall. The court was actually a grand hall which was adorned. Adorned means which was decorated with rich draperies. Draperies means curtains. Tall columns and a golden canopy. बड़े बड़े columns थे, pillars थे. You can see all this in picture. कि जैसे पूरे ये जो curtains draw करे गए हैं, these curtains were there. There were tall pillars, and there was a big hall and a golden canopy. Canopy means there was a golden seat where the king of Ujjain was sitting. The king, regal in his bearing. Regal in his bearing means he was dignified. उसको देखने से लग रहा था that he was truly a king. Watches intently as the merchant and the sentry bow before him.
ही वॉच्ड इंटेंटली कि अब क्या बात हो गई, क्या मैटर है ये. When the merchant and the sentry they bowed before the king. The king said, commanding, "What is the matter?" This dialogue was spoken by king. He said, "What is the matter that brings you to my court?" He asked the merchant कि क्या बात है, क्या matter है that you have come to my court. So the sentry says, here this reply was given by sentry, क्योंकि merchant ने जाकर अपनी बात पहले sentry को बताई थी, तो sentry ही king को बताएगा कि क्या बात है. Your Highness, this merchant has come with a grievance against 4 travelers. He accuses them of stealing his camel. और उसने कहा कि ये जो मर्चेंट है ये ग्रीवियंस लेकर आया है. ग्रीवियंस मीन्स कंप्लेंट लेकर आया है अगेंस्ट 4 ट्रैवलर्स, और उसने एक्यूज करा है, उन पर ब्लेम लगाया है दैट दे हैव स्टोलन हिज कैमल. सो द किंग सेज, दिस डायलॉग वाज स्पोकन बाय किंग, ब्रिंग फोर्थ द एक्यूज्ड. फोर्थ मीन्स आगे लेकर आओ उस एक्यूज्ड को, मीन्स जो 4 एक्यूज्ड पीपल हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है उनको लेकर आओ. द सेंट्री बोज एन एग्जिट. सेंट्री बो करता है किंग के आगे एंड ही एग्जिट्स टू ब्रिंग फोर्थ द 4 accused travelers. Returning shortly with the 4 young men, they bow respectfully before the king, maintaining calm despite the accusations against them. Despite the accusations, जो भी उन पर accusations, जो भी blames लगाए गए थे, उसके बाद भी ये 4 of the travelers were very much calm. So रामदत्त says, Your Highness, I discovered. अब वो किंग कहता है कि ठीक है, आपके ऊपर ये एक्यूजेशंस लगाए गए हैं, आप हमें क्लियरली बताओ कि क्या क्या बात है. रामदत्त says, Your Highness, I discovered that the camel is lame in one of its legs. तो रामदत्त ने कहा कि मैंने तो ये डिस्कवर करा था कि जो कैमल है उसके एक लेग में से वो लेम है. तो किंग सेज, हाउ डिड यू डिड्यूस दिस, हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन, आपने कैसे ये कंक्लूजन निकाला कि वो लेम है. फ्रॉम इट्स ट्रैक्स ऑन द रोड. रामदत्त सेज, रोड पर जो ट्रैक्स बने थे, आई टोल्ड यू ना, ट्रैक्स को स्टडी करा था उन्होंने, तो ट्रैक्स की वजह से ही मैंने ये ऑब्जर्व करा दैट द कैमल इज लेम. आई ऑब्जर्व दैट ओनली 3 feet लेफ्ट डिस्टिंक्ट इम्प्रेशंस. उसने कहा कैमल 4 feet से चलेगा, लेकिन उसने कहा कि जो 3 feet से ना थे ना, सिर्फ उन्हीं के प्रॉपर मार्क्स थे रोड पर. 4th feet का जो मार्क था बहुत फेंट था, हल्का था, इंडिकेटिंग अ लिम्प, कि वो लंगड़ा कर चल रहा था. The pattern of the tracks told the tale of a creature struggling to bear its weight evenly. और इसी पैटर्न से हमें पता चलता है कि वो अपना इवनली वेट बेयर नहीं कर पा रहा था. किंग सेड, नॉडिंग थॉटफुली. अब किंग ने सोचते हुए कहा, ही नॉडेड हिज हेड इन येस एंड ही थॉटफुली सेड, इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन, अच्छे तरीके से आपने ऑब्जर्व करा, वेरी गुड. यू हैव शार्प आइज एंड टीथ, आपकी आइज बहुत शार्प हैं. अब वो शिवदत्त से पूछता है, एंड व्हाट ऑफ यू, what did you discern about this camel? आपने क्या डिसर्न किया, आपने क्या नोटिस किया, what have you noticed about this camel? शिवदत्त says, I observed that the camel was blind in its right eye, your majesty. तो उसने कहा कि मैंने ये ऑब्जर्व करा था कि कैमल अपनी राइट आई में ब्लाइंड है. How did you arrive at this conclusion? It had nibbled only on the foliage to the left of the road. अब कैमल अगर राइट आई में ब्लाइंड होगा तो उसको सिर्फ लेफ्ट तरफ की चीज़ें नज़र आ रही होंगी ना, तो कैमल ने सिर्फ लेफ्ट साइड की फॉलिएज को ही खाया था. जो राइट साइड की फॉलिएज थी वो अनटच्ड थी, जो भी लीव्स ग्रास वगैरह थी ऑल दैट वाज अनटच्ड, बल्कि जो लेफ्ट साइड की फॉलिएज थी दैट वाज ईटन. द लीव्स ऑन द राइट हंग अनडिस्टर्ब्ड एज इफ अनसीन. ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको देखा ही नहीं हो. फ्रॉम दिस आई डिड्यूस्ड इट कुड नॉट सी विद इट्स राइट आई, and from this only I concluded that the camel could not see with its right eye. King smiling, well reasoned indeed. Such detail is not easily noticed by a casual traveler. कोई casual ordinary traveler इतनी ज़्यादा डिटेल को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा. Now to Hardat he asked, and your finding? Hardat says, I discovered that the camel's tail is short, your highness. उसने कहा मैंने ये डिस्कवर करा था कि कैमल की टेल शॉर्ट है. King says, explain how you came to such a conclusion. King ने कहा कि ठीक है, now you also give me the explanation of your conclusion. Hardat says, I noticed small droplets of blood coming along the track, likely from mosquito bites. उसने कहा मैंने देखा था कि small drops of blood आ रही थी ट्रैक से, as if some mosquito has bit. A camel with a long tail would have fended off these pests with ease. लेकिन अगर एक लॉन्ग टेल होती ना कैमल की, लाइक एनिमल्स डू विद देयर टेल्स, दे फ्लाई ऑल द फ्लाइज और इंसेक्ट्स विच सिट ऑन देयर बॉडीज,
तो अगर लॉन्ग टेल होती कैमल की तो वो उन पेस्ट को हटा सकता था, बट मस्कीटो को नहीं हटा पाया, इसका मतलब उसकी टेल शॉर्ट थी। These small specks told me of an animal lacking such defense. और मुझे समझ में आया कि उसकी टेल शॉर्ट होगी, हैंस द शॉर्ट टेल। वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था, बचा नहीं पा रहा था, लैक कर रहा था डिफेंस को। किंग इम्प्रेस्ड, यू रीजन विद ग्रेट इंसाइट, शोइंग बोथ ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन। तो उसने कहा कि आप ऑब्जर्व भी अच्छा कर रहे हो और रीजनिंग भी अच्छी दे रहे हो। टर्निंग टू देवदत्त, एंड यू वॉट डिड यू ऑब्जर्व दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम योर कंपेनियंस। अब उसने उससे पूछा कि तुमने क्या ऑब्जर्व करा ऐसा। Devdutt says, I noticed, Your Majesty, that the prints of the camel's forefeet were deep and clear, while those of the sound hind foot were faint. जो 4 फीट थी कैमल की जो आगे की फीट थी, उनके जो प्रिंट्स थे वो प्रॉपरली डीप थे, मतलब अंदर उनके क्लियर मार्क थे। वाइल जो हिंड फुट थे, जो एक हिंड फुट था, क्योंकि एक में तो वो लेम था ना, इट हैड अ लिम्प इन हिज लेग, तो जो एक हिंड फुट था उसका मार्क फेंट था। दिस इंडिकेटेड दैट द कैमल वॉज ड्रॉइंग अप इट्स हिंड लेग्स लाइकली ड्यू टू डिस्कम्फर्ट। हो सकता है उसको कुछ डिस्कम्फर्ट हो, इस वजह से वो अपने हिंड लेग को ड्रैग कर रहा था। इट मूव्ड कॉशियसली, बहुत ध्यान से चल रहा था वो। बर्डन्ड बाय अ पेन इन इट्स बैली, और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बेली में पेन को की वजह से बर्डन्ड है, परेशान है। trying to spare itself further suffering with every step, and he was trying to spare itself कि वो आगे किसी सफरिंग में ना आ जाए, इस वजह से वो अपने आप को बचाते हुए चल रहा था। King marveling, now King was very much impressed. He said, extraordinary, you have not seen the camel yet you know it intimately. तुमने कैमल को नहीं देखा but you know it very well. Intimately means in a proper detailed manner. Your reasoning is flawless and speaks of wisdom that goes beyond mere sight. आपकी जो रीजनिंग है दैट इज़ फ्लॉलेस, मीन्स कोई मिस्टेक्स के बिना है, इट इज़ परफेक्ट। एंड यू स्पीक विद विजडम, जो सिर्फ देखने से ही हम नहीं समझ पाते हैं। अब वो मर्चेंट से कहता है, योर एक्यूजेशंस आर बेसलेस एंड मिसगाइडेड। तुम्हारे जो क्लेम्स थे, तुम्हारे जो इन लोगों पर ब्लेम्स थे, वो सब बेसलेस हैं, उनके कोई बेस नहीं है। एंड यू आर मिसगाइडेड, आपको गलत आइडिया लगा है दैट दे हैव स्टोलन योर कैमल। दीज आर मैन ऑफ विजडम नॉट थीव्स, ये थीव्स नहीं हैं, ये समझदार लोग हैं। गो एंड कंटिन्यू योर सर्च फॉर योर कैमल एंड बी माइंडफुल ऑफ होम यू अक्यूज इन द फ्यूचर। और जाकर अपने कैमल की सर्च कंटिन्यू करो, और दूसरे किसी भी पर्सन को अक्यूज़ करने से पहले उसके बारे में सोच लो कि वो क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। सो इन फ्यूचर बी माइंडफुल। द मर्चेंट, चिसेंट एंड एम्बैरेस्ड, बोज डीपली एंड एग्जिट्स, हिज फेस रेड विथ शेम। अब मर्चेंट जो था, ही फेल्ट चिसेंट, मीन्स बहुत सॉरी फील करा उसने। ही वॉज एम्बैरेस्ड एंड ही बोज डीपली, और किंग के सामने बो करता है और उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया था बिकॉज ऑफ शेम, उसने गलत एक्यूज़ करा लोगों को। किंग टू द फोरमैन, यू डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस। आपने बहुत अच्छी इंटेलिजेंस डिमॉन्स्ट्रेट करी है, और आप ऑब्वियस से भी बियॉन्ड देख सकते हैं, जो क्लियरली नज़र आता है उससे भी आप आगे देख सकते हैं। सच माइंड्स आर रेयर एंड हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट। मेरे कोर्ट में ऐसे माइंड्स बहुत कम हैं और मैं उनकी बहुत वैल्यू करता हूँ। आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइजर्स एंड आई वॉन्ट यू टू बिकम माई एडवाइजर्स। योर काउंसिल शेल गाइड माई डिसीजंस। आपकी एडवाइस से, काउंसिल मीन्स एडवाइस, आपकी एडवाइस से मैं अपने डिसीजंस को लूँगा। एंड योर विजडम शेल बी अ बेकन फॉर माई किंगडम। आपकी जो विजडम है, आपकी जो समझदारी है, दैट वुड बी अ गाइडिंग लाइट फॉर माई किंगडम। व्हाट डू से टू माई ऑफर। अब वो इन 4 ट्रैवलर्स से पूछता है कि आप बताइए, आप मेरे ऑफर के लिए क्या कहना चाहते हैं। रामदत्त स्टेपिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए कहते हैं रामदत्त, योर हाइनेस, इट्स एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ। उसने कहा हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। इट्स एन ऑनर दैट वी हैव बीन सेलेक्टेड एज योर एडवाइजर्स। शिवदत्त सेज, वी आर हम्बल्ड एंड डीपली ग्रेटफुल फॉर योर ट्रस्ट एंड इन आर एबिलिटीज़। हम बहुत हम्बल हैं और हम बहुत थैंकफुल हैं कि आपने हमारी एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट किया। Herdert says, to serve a wise and just ruler like yourself is a privilege we accept with all hearts. हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है कि हम आप जैसे वाइज और जस्ट न्यायप्रिय रूलर को सर्व करेंगे। एंड वी एक्सेप्ट योर ऑनर योर ऑफर विद ऑल आवर हार्ट्स। देवदत्त सेज,
वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू योर सर्विस, हम अपने आप को सौंप रहे हैं आपकी सर्विस के लिए. ऑफरिंग आर इंसाइट्स एंड काउंसिल इन ऑल मैटर्स यू सी फिट, आपके अकॉर्डिंग जो भी मैटर्स हमारे लिए होंगे हम उसमें अपनी वैल्यूएबल विजडम के अकॉर्डिंग आपको इंसाइट देते रहेंगे, काउंसिल करते रहेंगे. King says, rising from his throne, then let it be known across the kingdom that 4 new advisors stand by my side. पूरे kingdom में ये बात बता दो कि 4 new advisors are standing by my side now. May your wisdom shine upon Ujjain and guide us to prosperity. अब तुम्हारा जो विजडम है वो पूरे उज्जैन में शाइन करे और हमें प्रॉस्पर करवाए, हमारी सिटी को प्रॉस्पेरिटी दिलवाए. The court erupts in applause as the king steps down to greet his new advisors. अब किंग नीचे उतरकर एडवाइजर्स को ग्रीट करते हैं, हैंडशेक करते हैं और पूरी कोर्ट में अपलॉज होता है, मीन्स दे ऑल स्टार्ट क्लैपिंग. The 4 young men stand proud and humble, their journey fulfilled in a manner they had never anticipated. उनकी जर्नी उस मैनर में फुलफ़िल हो गई जो उन्होंने कभी भी एंटिसिपेट नहीं करा था कि इतने अच्छे तरीके से उनकी किंग से मीटिंग भी हो जाएगी और उनको अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए अपने आप ही कहा जाएगा. उनको अपनी तरफ से कोई बात रखने की या बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किंग से. तो जो प्लान उनको बनाना था आगे जाकर उज्जैन के गेट्स पर, वो प्लान तो अपने आप ही गॉड ने उनके लिए बना दिया था. एंड ऑल देन started happening by the will of God. So this was all in the story. I hope you have understood it. If you have not watched the first part, then please watch the first part of the story as well so that you may understand it properly. Keep learning, keep growing. Thank you.